Welcome everyone. So today is a new day and we are going to start fresh with a fresh topic. As I promised, my name is Reshmi Mukherjee as the channel name suggests, and here you find ICC IAC topics, English literature and English language. Okay, and most importantly, it does not just cover your 2023-24 syllabus, but it also includes the syllabus afterwards, that is 2025. We have started with Macbeth and Julius Caesar. If you are ISC, go follow the and you are 2025 batch, you can follow the the Macbeth part, and the prose poetry also we will do soon with time. And the poet, and for class 10, class 9s and 10s, which is the 2025 batch, who are going to start fresh with your Julius Caesar. For them, we also have that we will be uploading. This is Julius Caesar batch, I mean the first class of Julius Caesar. Prose poetry also, the treasure chest part also, you will get soon. In the website, you will find the written materials. You can go follow that. You will find some practice papers. You can practice them. If you want to connect with me, you can connect through the Telegram channel Slot Skill Board Prep. The link is given in the description box. आपका सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल में जो टॉपिक है वो भी दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल व्हाट आर द चेंजेस, कौन सा नए बुक्स आए हैं, ओके, व्हाट आर यू गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस टाइम, ऑल दैट. Okay, next we will move to the next page over here. Those who are interested to start the private class batch, that is starting from April, and the admission will stop by the month of May. Okay, if you are interested, this is the email id slotskill.contact@gmail.com. वहाँ पे आप क्लास लिख दो, मेंशन कर दो अपना स्टेट, मेंशन कर दो डिजायर्ड नंबर ऑफ क्लासेस, मेंशन कर दो. मैक्सिमम 2 classes per week I take. I believe that would be enough, but you can mention it. And class timings, this is Tuesday 9:45, Thursday 8:30, Saturday 9:45, Sunday 8:30. These class timings you will get your recorded class, all live classes, as would be informed in the Telegram channel. And of course, do not forget to like, share and subscribe if you like it, right? अवेलेबल ऑफर्स, मतलब जो फ्री में ऑफर है वो है कि क्वेश्चन पेपर्स यू कैन शेयर विथ मी, दोज विल बी डिस्कस्ड इन द लाइव क्लासेस. ऑलरेडी जिन लोगों का 2024 में बोर्ड का बैच है उन लोगों को तो पता ही है, ऑलरेडी मेनी क्वेश्चन पेपर्स वी हैव डिस्कस्ड, वो आप फॉलो कर सकते हैं लाइव क्लासेस में, प्ले लिस्ट में मिलेगा आप लोगों को. क्लियर पिक्चर्स, इफ यू आर शेयरिंग क्वेश्चन पेपर्स, क्लियर पिक्चर्स भेजना, पीडीएफ बना के भेजना, और कहाँ पे भेजना है, वही slotskill.contact@gmail.com. ओके, अभी आते हैं चलो टॉपिक पे. नाउ टॉपिक इज, एज आई टोल्ड यू, इट इज गोइंग टू बी जूलियस सीजर. जूलियस सीजर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको यहाँ पे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. पहले ही डायरेक्टली हम लोग चैप्टर पे नहीं जाएंगे, पहले इसका प्लॉट, पर्पस, क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये सब देखेंगे. प्लॉट और पर्पस, मतलब ये जो प्ले है, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस एक ट्रेजी कॉमेडी था. ओके, तो इसका उसका एक पर्पस था कि क्रिश्चियंस और ज्यूइश पीपल में बहुत सारा मतलब स्ट्रगल था, क्या था वो, ये सब के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है. कौन रियल मर्चेंट था, क्रिश्चियन मर्चेंट्स का मतलब इडियोलॉजी क्या था, वो सब. नाउ इसमें आप जो पिक्चर यहाँ पे देख रहे हो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि दिस इज अ पॉलिटिकल प्ले. मतलब यहाँ पे पूरा ही पॉलिटिक्स, मतलब आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि पॉलिटिक्स में क्या रहता है. पॉलिटिक्स इज द अदर वर्ड फॉर पावर प्ले. तो पावर प्ले का मतलब क्या होता है, मतलब जो कोई भी पावर में है उसको लगता है कि आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग सो दैट आई कैन प्रोटेक्ट माई पोजिशन, कि मेरे पोजिशन को बचाना है, ये पोजीशन को रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी तरह से करूँ, कुछ भी करूँ, किसी को भी करूँ, डजंट मैटर. ओके, सो here we have 3 figures. Okay, that also you will understand why. Now if we move to the next page of it, the triumvirate, that means that from the word try itself you get an idea that there were 3. So the picture that I have already showed you, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा why 1 2 3. Okay, these 3 made themselves into a membership, and what kind of membership we will see. ये Netflix, Amazon जैसा membership, Amazon Prime जैसा membership नहीं है, कुछ और ही है, तो वो देखते हैं कि क्या है. First name Pompey or Pompey the Great was a leading Roman general and statesman. He played a significant role. मतलब हम इस पेज में क्या पढ़ रहे हैं, ये जो 3 कैरेक्टर्स मैंने पहले ही आपको बताया. ओके, ये जो ट्राई का जो कैरेक्टर है, ये तीनों ने मिलके
कोलैबोरेटली कुछ किया, कोलैबोरेटिवली कुछ किया, कोऑपरेटिवली कुछ किया। तो ये तीन कौन थे अलग अलग से हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो पॉम्पी है फर्स्ट नंबर 1। ये कौन है? ऑल आर रोमन पीपल। पहले तो ये क्लियर कर लो, ये जो पॉलिटिकल प्ले है ये कहाँ पे सेट है, सेटिंग कहाँ पे है? रोमन रोम। तो ये क्या किया? जनरल एंड स्टेट्समैन थे ये पॉम्पी। प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रोम फ्रॉम रिपब्लिक टू एम्पायर। इसने भी यही रोल प्ले किया। मार्कस क्रैशस, ये जो कैरेक्टर है, थोड़ा सा इतना सारा लंबा चौड़ा नाम याद करके कुछ फायदा नहीं, इससे पॉम्पी को याद रख लो, यहाँ से क्रैशस को याद कर लो। और ये भी रोमन जनरल है, ऑफ कोर्स ये रोमन प्ले होगा, ये तीनों ने मिलके कुछ किया तो सब रोमन ही होंगे। ये भी जनरल एंड स्टेट्समैन थे। की रोल प्ले किया किसमें? ऑफ द रोमन रिपब्लिक इनटू द रोमन एम्पायर। सेम ही है, रिपब्लिक से एम्पायर बनाया इसको। मतलब इसके इसके मतलब और भी कुछ है इम्पोर्टेंट, वो है कि ये रिचेस्ट मैन थे तब का रोम का। क्रैशस वाज द रिचेस्ट मैन इन रोम। लास्ट द थर्ड वन इज आर जूलियस सीजर। इसका पूरा नाम याद कर लेते हैं क्योंकि यही तो टॉपिक का नाम भी है। ये भी रोमन जनरल एंड स्टेट्समैन थे सेम। मेंबर ऑफ द फर्स्ट ट्रायम्विरेट, सीजर लेड द रोमन आर्मीज इन द गैलिक वॉर्स बिफोर डिफीटिंग हिज पॉलिटिकल राइवल पॉम्पी। पहले तो ये तीनों साथ में थे, फिर क्या हुआ? जैसे मैंने बोला कि पावर प्ले होता है, पॉलिटिक्स का मतलब है पावर प्ले। तो पावर प्ले मतलब मुझे पहले तो लगा था कि तीनों साथ में रहेंगे तो अच्छा, मतलब मौका अच्छा मिलेगा, एवरीथिंग वुड बी गुड। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? फिर बाद में उसने सोचा कि अगर मैं ये जो पॉम्पे इसको हटा दूं तो मुझे क्या होगा, मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो इसने क्या किया? सिविल वॉर होल्ड किया। ठीक है, मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना कि घर के अंदर ही हम लोग फाइट करते हैं। पहले तो ये तीनों मिलके ही घर बनाया, फिर इसको लगा कि ये जो घर में है ये ठीक नहीं होगा तो इसको हटाओ। तो फिर इसको पॉम्पी से प्रॉब्लम हो गया, इस पॉम्पी का राइवल बन गया एंड सब्सिक्वेंटली बिकम क्या क्या बन गया? वो डिक्टेटर, मतलब मैं जो बोलूंगा वही होगा। फिर जब वो डिक्टेटर बन गया तो ये इसका असैसिनेशन हो गया, मतलब ही वाज किल्ड in 44 BC. Okay, he played a critical role in the events that led to the demise of Roman Republic. Roman का रिपब्लिक वाला हिस्सा खत्म हो गया एंड सॉरी राइज ऑफ रोमन एम्पायर। ये तीनों का सेम ही है जो एरो में डाला है मैंने। ओके, सो तीनों ही रिपब्लिक से एम्पायर होने में इन लोगों का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशंस था। लेकिन Julius Caesar became a dictator. He thought that Pompey would be harmful for him. He killed that person also. And later on he was assassinated because he became a dictator. So तीनों फिगर्स क्लियर हो गया हमारा। ये तीनों फिगर्स कौन है जिसने ट्रायम्विरेट बनाया? ओके, तीनों मिलके जो किया। Now we will move to the next page which is the political history. Political play है तो political history के बारे में थोड़ा सा पता रहना चाहिए। द फर्स्ट ट्रायम्विरेट ये क्या है? मैं बार बार जो बोल रही हूँ कि ट्राई फिगर है, ट्रायम्विरेट ये क्या है? इनफॉर्मल पॉलिटिकल अलायंस है, मतलब इनफॉर्मल है, फॉर्मली किसी ने कुछ नहीं किया कि अच्छा चलो वोटिंग राइट्स मिल गया है अब सब मिलके फॉर्मली वहां पे जाएंगे वोट डालेंगे, ऐसा नहीं है। इनफॉर्मली सॉरी इनफॉर्मली ये तीनों एक साथ आ गए। कौन तीनों? ये देखो, सीजर, ये पॉम्पी। ओके, ये पॉम्पी भी बोल सकते हैं आप, कोई बात नहीं, क्रैशस, ये तीनों साथ में आ गए। इन ऑर्डर टू, क्यों किया ये? इन ऑर्डर टू बाईपास कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्स्टेकल्स। प्रॉब्लम हो रहा था, वो सोचा कि तीनों हम लोग, एक रिचेस्ट है, एक के पास ये पावर है, एक के पास वो पावर है, तो तीनों मिल गए तो सबको डिफीट कर सकते हैं, तो तभी तो कोलैबोरेट कर लिया। फिर क्या हुआ? तो सीक्रेट अलायंस था वो, ठीक है। लेकिन क्या प्रॉब्लम हो गया? द ट्रायम्विरेट वाज नॉट अ फॉर्मल magistracy, nor did it achieve a lasting domination over state affairs. It was formed between the three men due to their mutual need के लिए हुआ था, पहले स्टार्ट किया था इन लोगों ने साथ में आना। ओके, फिर क्या हुआ? वो टूट भी गया, राइट। The alliance was clearly successful in winning short-term political advantage. कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा करके इसको बेनिफिट हुआ था, सबको, इन तीनों को बेनिफिट हुआ था, इसीलिए वो लोग साथ में आए थे। फिर क्या हुआ? इट ब्रोक डाउन। द अलायंस वाज नेवर एंटायरली स्टेबल। कभी स्टेबल था ही नहीं, कभी इसके साथ ये झगड़ा कर रहा है, कभी उसके साथ वो झगड़ा कर रहा है। ऐसे सोचो कि एक फ्लैट में
एक सोसाइटी में 10 लोग मिलके रह रहे हैं। सब पहले सोचे थे कि साथ में रहेंगे, सभी बहुत ही अच्छे खानदान से है, झगड़ा नहीं करेंगे, साथ में रहेंगे। फिर साथ में रहते रहते देख रहे हैं कि कोई किसी की कुत्ते कुत्ते के साथ बदतमीजी कर रहा है, कोई किसी के घर पे थोड़ा सा कुछ फेंक दिया, ओके, गार्बेज डंप कर रहा है बाहर। तो ये बहुत तरीके का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। फिर सबके साथ सब झगड़ा करते रहे। फिर क्या हुआ, सब राइवल्स बन गए, ठीक है। तो उसका मतलब क्यों साथ में आए थे, क्योंकि वो अपॉर्चुनिस्ट थे, मतलब उसको लगा था कि सुविधा होगा, बेनिफिट्स मिलेगा साथ में करेंगे तो, लेकिन वो सेल्फिश भी थे, तो फिर टूट भी गए। द अलायंस ऑफ कोर्स कोलैप्स्ड। कब कोलैप्स हुआ, क्रैशेस जब मर गया तब, क्रैशेस का डेथ हो गया, ओके, द रिचेस्ट वन उसका डेथ हो गया। फिर क्या हुआ, 2 रिमेनिंग बच गए, पॉम्पे और सीजर। अभी क्या हुआ, अभी वो दोनों कम्पीट करना शुरू कर दिया। नाउ सीजर ने क्या, सीजर के साथ क्या हुआ, मिलिट्री सक्सेस हुआ इन गॉल, ओके, उसको मतलब थोड़ा सा सक्सेसफुल रहा वो किसी मतलब मिलिट्री एरिया में, एंड ही वाज नो लॉन्गर अ जूनियर पार्टनर। पहले क्या था, पहले सीजर ही एकलौता था जिसके पास उतना पावर नहीं था। पॉम्पी के पास बहुत पावर था, क्रशस के पास बहुत मतलब रिचेस था, सिर्फ इकलौता सीजर ही था जिसके पास ज्यादा पावर नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ, अब क्रशस भी मर गया है, अभी सीजर मिलिट्री सक्सेस मिला है उसको गॉल में। तो क्या किया उसने, वो अभी जूनियर पार्टनर नहीं रहा, तो उसके पास भी बहुत सारा पावर आ गया, तो उसने पॉम्पे के साथ डायरेक्टली स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। दे केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट, ओके। सो ये हुआ हम लोगों का हिस्ट्री, ओके। सो यहाँ से अगर आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत होगा तो यू विल इन्फॉर्म मी, यू विल टेल मी, okay. Many of you wanted me to speak in Hindi, so I have given you the gist in Hindi. Now we will move into the topic, मतलब the act 1 scene 1 of the text. Now we have got an idea. Now the background, इसका background क्या है कि अभी अभी Caesar has become victorious over Pompey's sons, मतलब जो भी पॉम्पे का बचा कुचा पावर था और मतलब इन वो क्या बोलते हैं इसको, सोल्जर्स था, आर्मी था, उसको भी हरा दिया सीजर ने, ओके। एंड ही इज कमिंग बैक टू रोम इन अ ग्रैंड वे, ओके। ये वो डिक्टेटर बन गया ना, अभी क्रैशस का डेथ हो गया, पॉम्पी को भी वो हरा दिया, पॉम्पी का सारा आर्मी भी गया, तभी वो बहुत खुशी खुशी इज रिटर्निंग टू रोम। तो स्ट्रीट में अभी हालत क्या है, सभी जो कॉमनर्स है ना, मतलब कॉमन पीपल, वो लोग बहुत ही मतलब खुश हैं, तो दे आर रिजॉइसिंग, ओके। Flavius, hence home, that means अभी घर जाओ, वापस जाओ, just go back home, you idle creatures, you sorry, lazy people, get you home. Is this a holiday? ये क्या आप लोगों का मतलब इतना खुश होने का क्या ही बात है? I know you not being mechanical, you ought not being mechanical मतलब तुम लोग तो काम करते हो, you people go to, you people work, like you are workmen, so you ought not work upon a laboring day without the sign of your profession. So how can you just not work on a working day without the sign of your profession? मतलब ड्रेस होता है ना सबका, तो अलग अलग ड्रेस, प्रोफेशन जैसा ड्रेस होता है, तो वैसा कुछ ना पहन के कुछ कैरी भी नहीं कर रहे हो, मतलब वर्किंग, वो काम के लिए तो नहीं आए हैं आप लोग बाहर। तो फिर क्यों है रास्ते में, मतलब क्या समझ में आ रहा है? फ्लेवियस, मर्यूरस, ये लोग क्या कर रहे हैं? These people are very angry because the people are rejoicing Caesar's return. Caesar ने क्या ही किया है, तीनों लोग साथ में रूल कर रहे थे, पहले एक मर गया, फिर दूसरे के साथ झगड़ा हो गया, उसके साथ मतलब देयर वाज अ सिविल वॉर, दे वर फाइटिंग। नाउ अभी एक का डेथ हो गया, पूरा खत्म हो गया, अभी सीजर इज रिटर्न। ये तो कोई सॉरी, ये तो कोई जीत ही नहीं है, ओके। स्पीक व्हाट ट्रेड आर्ट दाउ, सो व्हाट ट्रेड मतलब आप काम क्या करते हैं? फर्स्ट कॉमन, व्हाई सर अ कारपेंटर, सो आई एम अ कारपेंटर। वेयर इज दाई लेदर एप्रॉन एंड दाई रूल, मतलब आपके जो एप्रॉन रहता है ना, जो ड्रेस आप पहनते हो काम के वक्त, वो कहाँ है? रूलर कहाँ है आपका? मेजरमेंट का रूलर। वॉट डस्ट दाउ विथ दाई बेस्ट एपरल ऑन, मतलब आप आपके फाइनेस्ट क्लोथ्स पहन के क्या कर रहे हो अभी रास्ते पे? नाउ हाँ, तो ही इज टॉकिंग टू द सेकेंड कॉमन, यू सर व्हाट ट्रेड आर यू, तो आप क्या काम करते हो?
Truly, sir, in respect of fine workman, I am but, as you would say, a cobbler. तो मेरा काम है क्या? I am a cobbler. I mend shoes. Okay. But what trade art thou? Answer me directly. So you tell me directly what work you do. Like he twisted his words. No, instead of directly saying, "Sir, a carpenter," he's saying in a roundabout way. Truly, sir, in respect of a fine workman, आई एम बट एज यू वुड से अ कॉबलर. सो घुमा फिरा के बताया कॉबलर ने, तो बोल रहा है कि डायरेक्टली बताओ क्या हुआ, क्या काम करते हो. Okay, so we have initiated the basics of it. You have got a general idea of Julius Caesar. We will continue with the rest in the next class. I prepared the whole of it, but let us go slow. If you have, because this is a recorded class, you tell me if there is any doubt anywhere. We will continue with the next part in the next days. All pictures, everything is ready. So Sunday you will get the whole of it. We'll move back once again to this, to your question papers. This is your free offers that you are getting. If you want, you can share your question papers, send clear pictures, and send the PDF to softskill.contact@gmail.com. These are the class timings. Take a screenshot of it. Okay, don't miss the class. And other than that, ऑनलाइन प्राइवेट क्लास के लिए जो भी इंटरेस्टेड है, यू आर मेलिंग मी. दिस इज द न्यू email ID. Mail it over here. By May the admissions will end, so do it before that. Okay. uh, Telegram channel, you can connect with me. In the description box you will get the link, and website you will find written materials. Even Julius Caesar, you can check it from there. Okay. Julius Caesar का line wise paraphrase भी मिलेगा आपको वहाँ पे, वो आप check कर सकते हैं. All right, so that is all. Hope you will not forget to like, share and subscribe if you like it. Right, that's all. I have a lot of cough and cold, so bear with me. I'm very sorry. Thank you so much. Bye bye.